Hello students, my name is Ayush Gupta and today we are going to start lecture series about class 9th, and this is your first video lecture in which I will talk about your subject which is information technology. Subject code is 402. Okay, it's an skill subject for you guys. You have to study about it and take you will take this to real world, means that in this paper you will study about the application of computer. मतलब मीन्स दैट कि आपको क्या करना है कि इसमें जो इतनी भी चीज़ें आप पढ़ेंगे उसको आप रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर होते हुए देख पाएंगे। यह साइन थीटा कॉस थीटा की तरह नहीं है कि बेटा आप पढ़ के निकल गए। इसमें आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा वो आपके लिए कितना अच्छा है, आप उसके थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सो दिस वीडियो लेक्चर इज फॉर क्लास 9th, अगेन आई रिपीटिंग इट। दिस इज माई लेक्चर 1, ओके, and this is about me, my name and my school, which is Army Public School. Okay, this video lecture series is generated by Army Public School and whole credit goes to Army Public School. Okay, yeah, I am working with the supervision in the supervision of Army Public School. Now, introduction to subject. First of all, what I will teach you and what you have to study, we must have a very clear mind about it. Okay, so here we will study about the IT, about the IT, about the IT. Okay, we will study about IT. IT means information technology. Okay, and furthermore we have to study about many more things like how to use keyboard, how to use different things like this. Okay, so the book is I am recommended you is data domestic data entry operator is the title of your book. This is the title of your book, not your whole book. It is the title of your book, but the subject code is 402 and the subject name is information technology. Okay, now your book contains only 5 unit and we have to study only 5 unit in whole year. Okay, and we are starting with unit 1. So your first unit is introduction. Introduction to what? Introduction to information technology, ITES इंडस्ट्री। ये क्या होती है, कैसे ये इंडस्ट्री वर्क करती है, हमको इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए, इस इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए हमें कैसा बनना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट दिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, so here we go. So before I start, there are some instructions for you. You must have a copy and pen with you in which you will write your doubts. Okay, this video will be on Premiere, means that आपको ये वीडियो तभी आप प्ले कर पा रहे हो जब आपका क्लास चल रहा है। सो आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से नोटिस कर लेना है कि आपके पास क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप उसको लाइव कमेंट में तुरंत मुझे बताएंगे। क्यों आप मुझे तुरंत बताएंगे? क्योंकि मैं भी आपके साथ लाइव जुड़ा हुआ हूँ। आप लाइव कमेंट करिए, मैं आपको लाइव उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। जो भी आपका डाउट होगा तुरंत आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, सो आई थिंक नाउ इट्स क्लियर, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, what is ICT? ICT stands for Information and Communicational Technology. ठीक है, has become one of the basic requirement of the modern history. Obviously आज modern society, आज की डेट में बेटा तुम कल्पना कर सकते हो, कैन यू इमेजिन डैट कि आप केवल कंप्यूटर के बिना मोबाइल के रह सको? वो सोचो, बिना सेल फोन के, बिना किसी चीज़ के रह पाओ, कभी नहीं रह पाओगे। इन टूडेज डिजिटल इरा वी यूज़ मोबाइल डिवाइसेस टू परफॉर्म टास्क ऑफ अवर डेली लाइफ. It is difficult to think any event without using of डिजिटल डिवाइस के यूज़ किए बिना हम कोई भी अपनी लाइफ का इवेंट सोच ही नहीं सकते हैं। हम आई कांट इमेजिन, वी कांट इमेजिन इवेंट। हाँ, ऐसा कोई दिन तुम सोचो कि तुम सुबह सुबह उठो मोबाइल ही ना हो हाथ में। मोबाइल है ही नहीं, टेक्नोलॉजी है ही नहीं, कंप्यूटर है ही नहीं, इंटरनेट है ही नहीं। सोचो अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसी होगी? वी कांट इमेजिन, आई कांट इमेजिन, सीरियसली आई कांट इमेजिन। ओके भाई, मैं तो नहीं इमेजिन कर सकता कि हाँ मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई लाइफ ही नहीं है, उसके बिना मैं कैसे काम करूँगा, तो मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि इट्स लाइक अ बैकबोन फॉर मी, इट्स लाइक अ बैकबोन फॉर मी। सो या, नाउ नेक्स्ट,
Information technology is the one of the world's fastest growing economic activity which one of the fastest growing economic activity means that कि आपके पास क्या है, ये जो आपकी एक्टिविटीज़ है, यानी ये जो डेवलपमेंट का एरा है, यानी ये जो समय है, इस समय ये आपके फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक है, सॉरी सॉरी, ये क्या इस समय आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि सबसे तेज़ी से बढ़ रही है और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। आपका क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन को जहाँ चाहिए, जहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वहाँ पे ये फ्लो करने का वर्क करती है बेसिकली। Now that the information technology enable services, ITES, here E is small, ठीक है, enable, E for enable service, information technology enable service is the sector has not only changed the way of world look at our country but has also made significant contribution of the Indian economy। आज के समय में जो अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो इंडिया इज़ द बेस्ट आईटी, ऐसा बोला था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट आईटी के बंदे मिलते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं भी जाओगे तो आपको इंडिया के ही बंदे मिलेंगे, चाहे वो क्या हो, गूगल क्रोम हो, क्या हो बेटा, जी क्रोम हो। कौन है गूगल क्रोम का सीईओ? सुंदर पिचाई हैं। मास्टर कार्ड हो, मास्टर कार्ड से आप सब पेमेंट करते हो, मास्टर कार्ड, ठीक, ये हो गया। और आपकी क्या हो गई जो आप जनरली यूज करते हो, याहू यूज करते हो, याहू। एडोब यूज करते हो ना बेटा, एडोब रीडर, ADOBE, इसको एडोब नहीं एडोबी बोला जाता है, ठीक है, एडोबी बोला जाता है, एडोब BE होगा बेटा, D लिख दिया मैंने, BE एडोब, ठीक है, एडोब रीडर, एडोब फोटोशॉप जो आप यूज़ करते हो, एडोबी, एक्चुअली इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, एडोबी, ठीक। एंड इसके अलावा कौन सी कंपनीज हैं, जितनी आईटी की आपको दिग्गज कंपनियां पता होंगी, फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के, फेसबुक एंड माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के ऑलमोस्ट आर रन बाय इंडियंस। यस ट्रू, even Google has many Indians, okay, so which is the number one side of the world। so इस तरीके से आपको एक बात ये पता चल पा रही है कि अपने इंडिया का जो है आईटी के सेक्टर में बहुत बोलबाला है। पूरी दुनिया इंडिया की सर्विसेज को जानती है कि हाँ ये सर्विस देने में एक्सपर्ट हैं और ये दुनिया की सबसे अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। इसके पीछे एक रीज़न भी ये है कि अपने यहाँ लेबर सस्ता है, और ये लेबर क्या है, the meaning of labor is that you can use any human by very less rate। ठीक है, आप यहाँ पे किसी भी ह्यूमन रिसोर्सेज जो होती हैं हमारी, ये हमारे पास बहुत ही ईजिली अवेलेबल होती हैं। हमारे पास क्या है, यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास जो टाटा TCS की बात करें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, तो TCS क्या करती है, TCS के पास बंदों की कोई कमी नहीं है, बहुत लोगों को हायर कर लेती है एट द लेस रेट, वेरी लेस रेट में, बहुत सारे बंदों को हायर कर लेती है बहुत सस्ते दाम पे, ठीक। जिसका प्लेसमेंट नहीं होता उसका TCS में प्लेसमेंट हो जाता है, कहीं ना कहीं आपको रेंज करा देती है लेस रेट में, ठीक। जरूरी नहीं कि लेस रेट में, मतलब कि कई बार इसकी पैसे काफ़ी अच्छे होते हैं और कई बार ये डार्क क्यों नहीं चल रहा यार, और कई बार क्या होता है इसके पैसे कई बार कम होते हैं, जनरली इसके पैसे कम ही होते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कि इंडियन इकोनॉमी इस पर डिपेंड करती है, क्यों डिपेंड करती है मैंने अच्छे से बता दिया। इन दिस सेशन वी विल इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द आइडिया रिलेटेड विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटी इनेबल सर्विसेज। ठीक है, तो आईटी ने क्या क्या सर्विसेज आपके लिए इनेबल कर दी हैं, आप किसको किसको यूज कर सकते हैं, वही क्या होता है आईटी इनेबल सर्विसेज। एंड और क्या हमको जानना है, आईटी के बारे में जानना है, तो पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं। देखो पहले एक होता है CS, एक क्या होता है कंप्यूटर साइंस, ओके, एक होता है आईटी। तो होता है क्या है, आईटी का बंदा रिक्वायरमेंट बताता है, ये क्या करता है, कहता है भैया हमको ऐसा सिस्टम चाहिए, कैसा, ऐसा एक्स टाइप का सिस्टम, ठीक, क्या चाहिए, एक्स टाइप का सिस्टम चाहिए। और कंप्यूटर साइंस का बंदा क्या करेगा, इस एक्स टाइप के सिस्टम को डिज़ाइन करेगा। मतलब कि जो कंप्यूटर साइंस की फील्ड के बंदे होंगे, जो उससे रिलेटेड होंगे, जो कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर होगा, उसका काम होगा आईटी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना या आईटी के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, ठीक है, आईटी के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करना, यानी जो जो कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड कराएगा। Actually, my mouse is not working properly. I don't know why. Leave it.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई व्हाट आई टोल्ड यू, यू हैव टू फोकस ऑन CS। कंप्यूटर साइंस का बंदा क्या करेगा आपको, कंप्यूटर साइंस का बंदा आपको प्रोवाइड कराएगा क्या, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, क्या प्रोवाइड करेगा आपको बेटा, सिस्टम। ओके, इस सिस्टम को यूज कौन करेगा, इस सिस्टम को यूज करेंगे आपके आईटी वाले। कौन यूज करेंगे बेटा, आईटी वाले। आईटी वाले मतलब क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बंदे जो होंगे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे वर्क करते होंगे, वो इसको यूज़ करेंगे। सो व्हाट इज़ आईटी मीन्स, क्रिएटिंग क्रिएटिंग अब टच पैड भी नहीं चल रहा, क्या मुसीबत है, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग, सॉर्टिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक, इसको यूज़ कौन करेगा, आपके आईटी के बंदे यूज करेंगे। इट इंक्लूड्स ऑल द टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू आइडियल with information such as computer hardware software technology used for creating storing and transferring information। ठीक, तो आईटी में हम ये क्या करेंगे, आईटी में हम सबका यूज करेंगे। आईटी में CS का यूज करेंगे, कंप्यूटर साइंस का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, ताकि हम क्या कर सकें, अपनी डेली लाइफ की रूटीन को परफॉर्म कर सकें। क्या परफॉर्म कर सकें, क्रिएट कर सकें, डाटा को स्टोर कर सकें, डाटा को क्या कर सकें, ट्रांसफ़र कर सकें अपनी इन्फॉर्मेशन को। ठीक, कंप्यूटर टेक्स डाटा एज इनपुट, कंप्यूटर क्या करता है, एज ए इनपुट क्या लेता है, डाटा को एज ए इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और क्या होता है, रिजल्ट को एज ए आउटपुट प्रिंट करता है। जैसे कि अगर मैंने अपने टच पैड से यहाँ क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने ऐसे करके इसको लाइन बनाया, तो क्या हो रहा है, मैंने इसको इनपुट दिया, उस इनपुट के अकॉर्डिंग इसने क्या किया, इसने कुछ प्रोसेस कर आउटपुट के रूप में मुझे क्या दिया, इसने सिंबल दिया जो यहाँ पे बना हुआ है। सो ये क्या होता है, ये आपके कंप्यूटर के वर्क करने का तरीका होता है कि आपको क्या लेगा, पहले इनपुट लेगा, फिर आउटपुट देगा उसके अकॉर्डिंगली। ठीक, इनपुट लेगा, इनपुट के अकॉर्डिंगली क्या देगा, आपको आउटपुट देगा। और ये काम कौन करता है, इसका प्रोसेसर काम होता है प्रोसेसर का। ठीक, okay, so I'm not speaking in English to English because I think there are lots of students who is not able to understand English to English conversation through the video, because if I'll be in your class then they can ask me, but while you are watching a video on YouTube there is no one to explain you. So if you think that I'm talking in Hindi is bad, so it's for you. Yeah, there are different kind of students which need the clear explanation in Hindi also. Okay, that's why I'm using Hindi, so don't be panic about that. So where I was, okay, नाउ द इंफॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। ठीक, इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा को जब हम प्रोसेस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डाटा रिफर्स टू द फैक्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, फैक्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे हमने क्या कहा, सुनामी की बात की, किसकी बात की बेटा, सुनामी की बात की। ठीक, सुनामी की बात की। अब दुनिया में एक बार सुनामी तो आई नहीं है, दुनिया में कितनी बार आई है, 100-200 बार सुनामी अपनी आई होगी। तो उसका जो मेरे पास पूरा डाटा है, वो जितना उसके पास, जितने भी मेरे उसके पास क्या है, फैक्ट हैं, जितने भी फैक्ट हैं मेरे पास, जितने भी मेरे पास फैक्ट हैं वो क्या हैं, डाटा है। फिर मैंने क्या किया, इसको एक वेल अरेंज फॉर्मेट में अरेंज कर दिया। कैसे अरेंज किया, कि आप ईयर वाइज देख सको, क्या कर सको बेटा, ईयर वाइज देख सको, या क्या कर सको, कैजुअलिटी वाइज देख सको, हाँ कि किसमें कितना नुकसान हुआ था। ठीक, कैजुअलिटी, इस तरह से अलग अलग तरीके से देख सको। जियोग्राफी देख सको कि जियोग्राफिकल कहाँ पे आया था, कब आया था, जियोग्राफिकल। ठीक, कहाँ पे आया था, कैसे आया था, कहाँ पे क्या हुआ, हाँ इस तरीके से देख सको। तो क्या हो जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। तो जब भी आपके पास रॉ फैक्ट की हम बात करते हैं, रॉ फैक्ट का मतलब वही जो भी चीज़ें आप सुनते हो, देखते हो, लेकिन आपके मतलब की नहीं हो। जैसे आपके बगल से गाड़ी निकली, उस गाड़ी का नंबर आपके मतलब का नहीं होता, तो आपके लिए क्या होगा, वो एक रॉ फैक्ट हो गया। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है ना बेटा। सो इट्स मोर देन 10 मिनट्स। ओके, फैक्चुअल डाटा, ओके ओके ओके, मैं कहाँ था, मैं भूल गया हूँ। हाँ, डाटा refers to the fact of raw material which are processed to get the information. Number of boys and girls in a class is a factual data of the classroom. This is an example of data related to the student in the class. Some conclusion can be drawn based on the data. This conclusion is information। ठीक, जो आप conclusion निकालते हो ये आपकी क्या होती है, information होती है।
अब देखो मैंने क्या कहा, जब आपको डाटा को आप वेल फॉर्मेट में अरेंज कर दोगे ना, जब डाटा को आप वेल फॉर्मेट में अरेंज कर दोगे तब उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो। जैसे अभी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, तो उन्होंने क्या किया, कोरोना को आप जब जाते हो ना नेट पे, तो उसमें क्या देखते हो, आप नेट पे जा करके देखते हो कि कोरोना के अलग अलग देश में अलग अलग समय में कितने कितने केस आ गए। यही तो आप चेक कर रहे हो आजकल। आजकल हम क्या देखते हैं कि नंबर ऑफ केसेस केस ठीक, नंबर ऑफ़ केसेस कितने हैं, नंबर ऑफ़ कैजुअलिटीज़ कितनी हैं, किस देश में कितनी है, किस शहर में कितनी है। तो ये क्या होती है, इन्फॉर्मेशन आपकी, जो आपका डाटा है, ये क्या है, ये सब डाटा है जो कि कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है। डाटा आपका एक वेल अरेंज मैटर में प्रेजेंट किया जा रहा है, इसको हम क्या कह देते हैं, इन्फॉर्मेशन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। द डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन। IT इज़ अ टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस, बिल्कुल बिजनेस इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। सही बात है, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको क्या चाहिए, सबसे पहले तो सिस्टम चाहिए चाहिए, ताकि आप क्या कर सको, आप अपने बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर कर सको। ठीक, क्या कर सको, इन्फो स्टोर कर सको। उसको कैसे प्रमोट करना है, आप अगर मान लो कोई बिजनेस स्टार्ट करो, उसमें आपको कुछ इनपुट है, आपने कितना कैपिटल लगाया उसका आप हिसाब रख सको, कितना आपने कैपिटल गेन किया, कितना आपका लॉस हुआ, क्या हुआ। तो आपको एक ग्राफ चाहिए उसके लिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, आप ग्राफ वगैरह समझने के लिए क्या चाहिए, एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए ही चाहिए। उसके बिना आप इसको आप एक्सप्लेन या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। समझ पाए ना बात को भैया? नहीं समझ में आएगी, देन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट, और या यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट only. Computer information technology are the essential part of every business, likely accounting and legal. Every business needs to invest in technology to complete. IT has several benefits for a business, such as it helps in reaching more potential customer, developing a business relationship with the potential customer. मतलब क्या कि आपका क्या होता है, बिजनेस रिलेशनशिप को भी मेंटेन करता है। स्ट्रीमलिंग ऑपरेशंस होते हैं इसमें, क्या होता है, रिड्यूसिंग कॉस्ट होती है, कॉस्ट भी कम हो जाती है। इंप्रूविंग एफिशिएंसी आपकी अच्छी हो जाती है। मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट आपका अच्छा हो जाता है। एंड मिनिमाइजिंग वेस्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका वेस्ट को मिनिमाइज कर देता है। प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस, आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा पाते हैं कस्टमर को। सपोर्टिंग बेटर रिलेशनशिप विद द की पार्टनर्स, आपके जो पार्टनर होंगे उसके साथ आपकी अच्छी रिलेशनशिप बनेगी। एंड अलाउिंग कस्टमर टू बेटर गाइड फॉर बिजनेस, आप क्या कर सकते हैं, उनको एक अच्छा कस्टमर को एक अच्छी गाइड प्रोवाइड करा सकते हो अपने बिजनेस के लिए। मान लो मेरा कोई बिजनेस है, सपोज डैट मेरा कोई बिजनेस है, उसकी मैंने एक वेबसाइट दे दी। क्या दे दी बेटा, एक वेबसाइट दे दी, वेब SIT वेबसाइट, मैंने क्या किया, एक वेबसाइट दे दी। अब इस वेबसाइट के थ्रू क्या हो गया, आपको मेरे प्रोडक्ट की सारी क्या मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई, INFOR, ठीक, इन्फॉर्मेशन मिल गई, इन्फो मिल गई, आर्ग्यू तो थी, इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब क्या हो गया, अगर मान लो इसे अभी मैं क्या करता, अभी मैं पम्पलेट बांटता, क्या करता बेटा, पम्पलेट देता आपको, यहाँ भैया देखो मेरे पास ये चीज़ें हैं। ठीक, आपके पम्पलेट में क्या करता, आपको कोई एक मोबाइल नंबर दे देता। पम्पलेट समझो ना बेटा, जो आपको चौराहे चौराहे पे लोग मिलते हैं, कोचिंग वाले अक्सर देते हैं, वो उसमें मोबाइल नंबर दे देता और कहता कि भैया ऐसा है कि इस मोबाइल नंबर पे कॉल करो और आप मेरे शॉपिंग कर सकते हो, मेरे बिजनेस पे आप अपना इंटरेस्ट दिखा सकते हो। लेकिन वेबसाइट के थ्रू क्या होगा, हमें केवल उनको एक नाम बताना होगा, अपनी वेबसाइट का लिंक। जैसे मेरी एक वेबसाइट हुआ करती थी castSMS.tk, ये मेरी खुद की वेबसाइट थी, अभी नहीं है ये ऑनलाइन, क्योंकि ये जो डोमेन था ये फ्री का डोमेन था और इसका गेम ओवर हो चुका है। castSMS.tk, ठीक, तुर्की, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, तुर्की। ये टीके की वेबसाइट थी मेरे पास, बढ़िया सी हमारी वेबसाइट रन हो रही थी। अब हुआ क्या कि किसी का दिमाग चला होगा, उसने भी सेम नेम ले लिया और ये फ्री का डोमेन था, डोमेन हमसे छीन लिया गया। तो बात कर रहे थे हम वेबसाइट की। अगर मान लो मैंने आपको बता दिया castSMS.tk, भैया मेरी वेबसाइट है, ओपन कर लीजिएगा, और अगर आपने इस वेबसाइट को ओपन किया तो अपना इंटरेस्ट इसमें आप दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट दिखाने का मतलब क्या, कि अगर आप एक कस्टमर हैं तो उसकी सर्विस को आप खरीद सकते हैं। ठीक, अगर आप एक कस्टमर हैं तो आप कस्टमर होने के नाते क्या कर सकते हैं, मेरी सर्विसेज को आप बाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, बाय कर सकते हैं।
अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा, मेरी अप्रोच अच्छी लगी, तो आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक, इन्वेस्ट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अगर आप कोई बिजनेसमैन है, मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आप मुझसे मिल भी सकते हैं अकॉर्डिंग योर नीड, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, एक अगर हमारे पास आईटी है, अगर हमारे पास एक वेबसाइट है, अगर हमारे पास एक ऑनलाइन काम करने की टेक्निक है, तो हम नो डाउट बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, ऑब्वियसली, हमेशा, ठीक। चलिए शुरू करते हैं आगे। थोड़ा सा ये मेरा क्या बताऊँ, ग्राफिक टैब ख़राब हो गया ना बेटा, इसलिए थोड़ा सा लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इस समय, बट नो वरी, सब सही हो जाएगा। अब क्या होता है आई टी ई एस, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज। सो आपकी वीडियो 20 मिनट्स की हो चुकी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेट इनेबल्स द बिजनेस बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इज़ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विसेज, ठीक। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिस बिजनेस सर्विसेज को आपको इनेबल करती हैं, जिस सर्विसेज के लिए इनेबल करती हैं, जिससे कि आपका क्या हो सकता है, इससे आपका बिजनेस और अच्छा हो सकता है, उसे वो क्या कहता है? आई टी ई एस बोल देते हैं, ठीक है। ITS is also called web-enabled services or remote service that cover the entire operation, which exploit information technology for improving the efficiency of an organization. Means ये इसको क्या कहते हैं बेटा? वेब इनेबल सर्विस भी कहते हैं और रिमोट सर्विस भी कहा जाता है। ये क्या करती हैं? ये आपके सारे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, उसको क्या करती है? कंट्रोल करने का काम करती है, जिससे कि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। किसकी एफिशिएंसी? आपके ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर मान लो कि आपका कोई बिजनेस चल रहा है कहीं पर, मान लो पेट्रोल पंप है या कुछ है, तो उसको आप एक जगह से बैठ के एक्सेस कर पाओगे। आपका जो मालिक हो, आप मालिक हो, आप यू आर द इंचार्ज, और आप इंचार्ज होने के नाते अगर आप एक जगह से सब चीज़ों को हैंडल कर पाओ, ठीक, आप एक जगह से बैठे बैठे ही सबको ऑर्डर दे पाओ, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना। वही बात कही जा रही है। दिस सर्विस प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शन, यहाँ पे आपको करियर्स ऑप्शन मिल जाते हैं। डैट इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज़ इन ऑल ऑफिस लाइक सेल सेंटर्स, पेरोल्स, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, रेवेन्यू क्लेम प्रोसेस, ओके, मेडिकल बिलिंग, कोडिंग, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डाटाबेस, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, कंटेंट डेवलपमेंट, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वेब सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, ETC। लेट मी एलाबोरेट इट फर्स्ट। तो हमें तो मालिक नहीं बनना है ना, हम क्या सीख रहे हैं? हमें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है। तो हमें ये जानना है कि वर्क क्या क्या होते हैं। मान लो कि अगर आपके यहाँ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आपकी करियर अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। देखो, सेल सेंटर्स क्या होते हैं? सेल सेंटर्स लाइक कॉलिंग सेंटर टाइप, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके लोग आके आपसे क्वेरी करते हैं। पे रोल्स, मान लो एक कंपनी है, वहाँ पे 2000-3000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो उसको कितने को कितनी सैलरी मिलेगी, वो पे रोल होता है। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट की, आपके पास जो भी चीज़ें सामान आप यहाँ से वहाँ भेजते हो, कोरियर करते हो, या आपकी कंपनी को सामान आ जा रहा है, उसको मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है? लॉजिक मैनेजमेंट कहलाता है। रेवेन्यू क्लेम, मतलब कि मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, उसका कितना रेवेन्यू बन रहा है, उसको आप कैसे क्लेम करोगे, कैसे आप उसको गेन करोगे, किस अकाउंट में जाएगा, क्या होगा, उससे रिलेटेड आप इसको समझ सकते हो। मेडिकल बिलिंग, कोई भी है तो उसकी बिलिंग करना, ऑब्वियसली कोडिंग, कोड करना। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, लीगल डाटाबेस का मतलब ये रहता है कि आपको एक लीगल तरीके से, लीगल इन द मीन्स कि जो आपका भारत में जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको डाटाबेस प्रिपेयर करना पड़ता है। डाटाबेस इन द सेंस कि आप कोई कंपनी शुरू कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कुछ परमिशन चाहिए होंगी, परमिशन वगैरह को मेंटेन करना। बैक ऑफिस ऑपरेशन, ऑफिस के बाहर के जो आपके काम होते हैं। कंटेंट डेवलपमेंट, यानी मान लीजिए हमें कोई चीज़ आती है, उसके बारे में हम लिखना चाहते हैं, तो उसको कंटेंट डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। GIS क्या है? जियोग्राफिकल इंटरफेस सिस्टम, यानी कि आप क्या अलग अलग जगहों पे कैसे काम करना है, किस कंडीशन में, कौन से कंडीशन में काम करना बेहतर होगा, उसको आप जान सकते हैं। वेब सर्विसेज, मैंने आपको बता ही दिया वेबसाइट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स की, कैसे आपको किसी को हायर करना है, कैसे हायर नहीं करना है, ठीक है। 4 सर्विसेज होती हैं। इसमें से आपको जिस भी सर्विस के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि मैं कम दे रहा हूँ, आप उसको नेट पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा, या एक तरह से आपका होमवर्क भी है, ठीक। नाउ मेन पॉइंट, ITES is defined as the outsourcing of processes that can be enabled with information technology and covers
diverse areas like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, manufacturing, etc. So ITES is defined as the outsourcing of processes. मतलब क्या, प्रोसेस को आउटसोर्स करना, मतलब कि इसको सही तरीके से रन कराने की बात हो रही है। आउटसोर्स मतलब कि मैं इसको हिंदी में कैसे आपको समझाऊँ, जैसे कि आउटसोर्सिंग मतलब किसी एक के पास एक लगाम हो, जैसे कोई राजा नहीं होता था, उसके पास सारी चीज़ों की कमांड होती है, ऐसे आपको जो कमांड हो वो कैसे उसको हैंडल करेगा, ठीक है। तो यही है प्रोसेसेस ऑफ डैट कैन बी इनेबल विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से इनेबल किया सकता है। और ये क्या करता है, काफ़ी चीज़ें जैसे फाइनेंस हो गया, HR हो गया, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सबको क्या करता है, अपने अंदर गेन करता है, नहीं सबको आप कर सकते हैं। ई इनेबल सर्विस, ई इनेबल मतलब इंटरनेट इनेबल्स, और इसको क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इनेबल्ड। ई इनेबल्ड सर्विस रैपिडली रिड्यूस cost and improve services standard obviously. In short, internet service provider aims to provide B2B, business to business e-commerce solution। मतलब क्या, बिजनेस टू बिजनेस, क्या मेरे पास एक बिजनेस है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे मान लो कि मेरी मोबाइल की शॉप है, क्या बेटा, मेरी मोबाइल की शॉप है, ठीक। अमेजॉन क्या है, अमेजॉन भी एक ऑनलाइन बिजनेस साइट है ना, अमेजॉन एजेड लिख रहा हूँ, ठीक। अमेज़ॉन भी क्या एक बिजनेस साइट है। तो अमेज़ॉन ने क्या कहा, भैया ऐसा है कि तुम अपने मोबाइल क्या करो, अमेज़ॉन.इन पे बेचो। एक मिनट बेटा हम पानी पी लें। ओके बेटा, तो क्या कहा अमेजॉन ने, अमेजॉन ने कहा मेरे से कि भैया ऐसा है कि आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ला सकते हो। मैंने कहा कैसे, उन्होंने कहा आपको सेलर ऐप डाउनलोड कर लेना है, और सेलर ऐप डाउनलोड करके आप मेरे में क्या कर सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक। तो ये क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स सोल्यूशंस हो गए, ठीक। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। ITES offers different services integrated in a single delivery mechanism to end user। मतलब क्या, मतलब सिंगल डिलीवरी मैकेनिज्म का मतलब ये है कि एक ही तरीके का काम रहेगा, इसको कई लोग, कैसे कि हम भी मोबाइल बेचे थे, अमेजॉन भी बेच रही थी, तो इंड में क्या होता है, इंड में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था, लेकिन अभी क्या है, हम दोनों मिलकर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारी जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी, ठीक। हमें क्या करना है, हमें अपने मोबाइल को केवल अमेजॉन को देना है, अमेजॉन विल डिलीवर दैट, ओके। द सर्विस में इंक्लूड मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डाटा एंट्री एंड डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा वेयर हाउसिंग, IT हेल्प डेस्क सर्विसेज, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक। इस तरह की सर्विसेज जो होती हैं ये सब इस सब के अंदर आती हैं। आपको मैं फिर से कह रहा हूँ, जो सर्विस ना समझ में आए नेट में पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं जो आपको ना पता हो। डाटा एंट्री आपको पता होगी, डाटा प्रोसेसिंग आपको मैंने बता ही दिया, कस्टमर रिलेशनशिप मैंने बता दिया, आप कस्टमर केयर में कॉल कर देते हो भक्त से ना, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है आपको। डाटा वेयर हाउसिंग, जहाँ पे आपके डाटा स्टोर किए जाते हैं कि आपका डाटा लीक ना हो, वहाँ पे जो आपका हब होता है वो हो गया डाटा वेयर हाउस। IT हेल्प डेस्क होती है, ठीक ना। बात करते हैं BPO सर्विस की, जो आपका मेन आपका कोर्स जहाँ से स्टार्ट होता है वो यहीं BPO से स्टार्ट हो रहा है। BPO क्या होता है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसका क्या मतलब है, मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। आपको अपने बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, लेकिन किसके थ्रू, किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा। कैसे, देखते हैं। इट कम्स अंडर द IT सर्विस एज इट प्लेज अ वेरी यूजफुल रोल इन ऑप्टिमाइजिंग द बिजनेस परफॉर्मेंस, ठीक। बिजनेस परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। The BPO industry is highly organized and hence various kind of jobs are outsourced in India। यहाँ पे क्या है कि काफ़ी ज़्यादा ये क्या होती है, इसकी इंडस्ट्री जो होती है ना बेटा, काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है, क्योंकि इसको काम हर कोई नहीं कर सकता। BPO का काम हर कोई नहीं कर सकता। BPO काम कौन कर सकता है, ये आगे आपको पता चलेगा, ठीक। क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है, ओके। अभी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज होती है, क्यों, क्योंकि इसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। जो रिसोर्सेज चाहिए होती हैं वैसे ठेले पे लगा काम नहीं होता है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बढ़िया सा ऑफिस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, ऑफिस। और उस ऑफिस में ही बैठ के हम उस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अब अगर कोई एक ऑफिस बिल्डअप करेगी कोई कंपनी, तो क्या होगी, वो ऑर्गेनाइज वे में होगा ना। ऑफिस का मीनिंग क्या है, ऑफिस का मीनिंग ही है ऑर्गेनाइज यानी कार्यालय। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका सारा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, और जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा क्या होगा, एक तरीके से वेल मैनर्ड होगा, ओके। इंडिया हैज़ एक्सपर्टाइज इन रिड्यूसिंग कॉस्ट विथ फर्म कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ द सर्विस, ठीक है। जैसी आपकी क्वालिटी वैसे आपका पैसा, ठीक।
इसको क्या हो सकता है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के अकॉर्डिंगली क्या होता है, उसके पर मार्क मतलब क्या कहते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। सम BPO सर्विस आर इन फ्लोज, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज ये एक हो गई, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विस ये आपकी BPO सर्विस है। अब क्या है, ई पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन ये भी आपकी एक सर्विस है। लीगल सर्विस एंड कंटेंट राइटिंग ये भी एक आपकी सर्विस है। कंटेंट राइटिंग के बारे में भी आपको एक बात बताता हूँ। मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विस, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सब क्या है आपकी BPO सर्विसेज हैं। कंटेंट राइटिंग की मैं बात आपको बताता हूँ, आज से बहुत पहले मतलब 2018 में या 19 में एक कंटेंट मार्ट करके साइट थी, क्या नाम था बेटा उसका, कंटेंट मार्ट। इस कंटेंट मार्ट में क्या था कि एक बार मेरे को अमेजोन ने संपर्क किया मेरे से, इससे मेरी आईडी बनी हुई थी, बिकॉज आई एम टाइपिस्ट टू। तो वहाँ पे लिखा था कि अमेज़ोन ने एक ऑफ़र डाल रखी थी। उन्होंने ये बोला मेरे से कि आपको 2500 रिव्यू देने। एक्चुअली वीडियो ऑनलाइन है तो मेरे पास कोई प्रूफ तो नहीं है इस बात का, बट मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को ऐसे वर्ड तो नहीं यूज़ करना चाहिए। तो 2.5 आपको रिव्यूज़ देने हैं, तो वहाँ पे ये सब मेरे को काम मिलते थे, या आपको वहाँ पे कंटेंट राइट करने का काम मिल सकता है। ओके, अब ये वेबसाइट डाउन कर दी गई है, बंद कर दी गई है। ओके, सो यहाँ पे कोई इसका प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, सो आप इसको इग्नोर कर दीजिए इस बात को। खैर मैं भूल ही जाता हूँ, नेट पे है ये, ठीक। तो आपको IPO BPO समझ में आ गया होगा, मतलब इस की जो सर्विसेज आप ऑनलाइन जो प्रोवाइड कराते हो IT के थ्रू, तो उसको क्या कहते हैं, BPO सर्विस कहते हैं। नाउ BPM अब क्या है, ये IT की एक अलग सर्विस है। BPM क्या होती है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक। अब बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट से हम कल समझने की कोशिश करेंगे। हमने आज बहुत ही कम पढ़ाई की है, क्यों, क्योंकि हम आपको बेसिकली समझाना चाह रहे थे आपका यूनिट क्या है। आपकी केवल 5 यूनिट है, मैं आपको सिलेबस दिखा दूँ थोड़ा सा। इस 5 यूनिट को हमें साल भर पढ़ना है, तो अगर हम बहुत तेज़ी से पढ़ें और कुछ ना समझ में आए तो वो भी गलत है। हमें क्या करना चाहिए, एक सेकेंड बता रहे हैं आपको, केवल हमें 5 यूनिट डिस्कस करनी है और 177 पेजेस डिस्कस करने हैं, ठीक है। अभी तो मैंने बहुत ही बेसिकली आपको बताया है, कीबोर्ड स्किल एंड डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन सब बहुत ही इजी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपको पता ही है, ठीक है। डिजिटल रिप्रेजेंटेशन जो आप देख ही रहे हो, तो ये सब बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए मैं थोड़ा आराम से चल रहा हूँ। आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपके 30 मिनट पूरे हो चुके हैं। सो ये वीडियो इतनी ही 30 मिनट्स का है, और इसको आप देखिए। इसके बाद आपको जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है आप मेरे से मैसेज बॉक्स में मुझसे पूछिए। आई थिंक कि 30 मिनट का डिस्कशन हमारे लिए बहुत होगा, इससे ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। मैंने पढ़ाया ही कितना है, बहुत कम पढ़ाया है, ठीक है। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल फोकस ऑन दी, वी विल गेयर अप लिटिल बिट, ओके, वी विल गेयर अप। एंड गेयर अप का ये मीनिंग नहीं कि आपका हाँ फिर मैं सीधे फर्स्ट गियर से सीधे 5th गियर में बूम कर जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट से सेकेंड में गेयर अप करेंगे और थोड़ा ज़्यादा तेज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो for today it's sufficient, you got some introduction about it, okay. So thanks for watching my video. Please do not forget to subscribe my channel, like and share, comment and review also if you can, and stay home, stay safe. Bye, thank you.